بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں باہر لان میں نکل آئی۔ صبح کی تازہ ہوا میں لمبے لمبے سانس بہت تازگی کا احساس دلاتے تھے۔ گھاس پر ننگے پیر چلنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ موسم ٹھنڈا تھا، لیکن پھر بھی میں ٹھنڈ سے بے نیاز چل رہی تھی۔ دوپٹے سے اچھی طرح خود کو کور کر کے میں لان میں واک کر رہی تھی۔ سردی کی ایک تیز لہر مجھے پاس سے گزرتی محسوس ہوئی اور میرے بدن میں کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ ملے اور سردی کا احساس کم کرنے کی کوشش کی اور اپنے سلیپر پیروں میں پہنے اور گھر کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر میں سب سو رہے تھے، میرے علاوہ گھر میں کسی کو سحر خیزی کی عادت نہیں تھی، نہ ہی کوئی فجر کی نماز وقت پر ادا کرتا۔ اس نے تو اب سب کو کہنا بھی چھوڑ دیا تھا، اس کی بات پر کوئی کان ہی نہیں دھرتا تھا۔ اس کی تعلیم مکمل ہوئے ابھی چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ اب اس کا ارادہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھنے کا تھا۔ جب سے اس نے گھر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، سب نے بہت مخالفت کی۔ اس کی ماما کہنے لگیں، ہماری کلاس میں یہ سب نہیں چلتا، سب کیا کہیں گے، تمہاری بیٹی ملانی بن گئی ہے۔ ماما کو پر ہر وقت اپنی کلاس اور ان کے لوگوں کی فکر ہوتی تھی۔ ان کے سامنے کیسے خود کو شو آف کرنا ہے، ان کا دھیان انہی چیزوں میں لگا رہتا۔ ان سب کی آرٹیفیشل زندگی مجھے بہت خوف میں مبتلا کر دیتی۔ مجھے سادہ اور مخلص لوگ پسند تھے، جیسے میری پھپھو تھی۔ ان کے گھر میں پیسوں کی اتنی ریل پیل نہیں تھی، لیکن وہ بہت مخلص اور سادہ لوگ تھے۔ مجھے وہاں بہت اپنائیت کا احساس ہوتا۔ میں وہاں بہت خوش رہتی تھی، لیکن ماما کو وہاں جانا پسند نہیں تھا۔ ماما کی مخالفت کے باوجود بھی بابا کی شہ پر میں وہاں ضرور جاتی۔ گھر میں مجھے بس بابا ہی سپورٹ کرتے تھے، وہی میری ہر پسند یا ناپسند کا خیال رکھتے۔ ماما اور میری تو لگتی ہی نہیں تھی۔ میرا تفسیر قرآن کا کورس کرنے کا ارادہ جب پھپھو کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ میں اپنے دل کی ہر بات ان سے شیئر کرتی۔ ماما کے پاس میرے لیے کبھی وقت ہی نہیں تھا۔ میرے باقی بہن بھائی ماما پر ہی گئے تھے۔ میرے علاوہ میری ایک بہن اور بھائی اور تھے۔ وہ بالکل ماما کی طرح اسٹیٹس کانشیس تھے، اپنے سے نچلے طبقے کے لوگوں کو کچھ نہ سمجھتے۔ میری باتوں کو وہ لوگ دقیانوسی سمجھتے تھے۔ تنگ آ کر انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا اور میں نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ رکھا تھا۔ میں ان سب سے مختلف اس لیے تھی کیونکہ میں ہمیشہ سے ہی اپنی دادی کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ میری دادی بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ میں نے کبھی انہیں تہجد کی نماز بھی چھوڑتے نہیں دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے میرے اندر انہی کی طرح کی عادت پیدا ہونے لگی۔ میری ماما بہت ہی لبرل خاتون تھی۔ دادی کے ساتھ ان کی کم ہی بنتی تھی۔ ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنی دادی کے ساتھ وقت نہ گزاروں، لیکن میں کوئی نہ کوئی موقع پا کر ان کے پاس پہنچ جاتی۔ جب میں 13 سال کی تھی تو اس وقت میری دادی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ وقت میرے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا۔ بابا اور میں ان کو یاد کر کر کے بہت روتے تھے۔ دادی کے علاوہ میں اپنی پھپھو کے ساتھ بہت اٹیچ تھی۔ مجھے اپنی پھپھو کے اندر دادی کا ہی عکس نظر آتا تھا۔ ماما ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں رکھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت کم ہمارے گھر میں آتی تھی، لیکن میں اور بابا ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ میرے باقی بہن بھائیوں کو بھی پھپھو کے ساتھ کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے شروع سے ہی سچے خواب آیا کرتے تھے۔ میں اکثر روزمرہ کی باتیں پہلے ہی اپنے خواب میں دیکھ لیتی تھی۔ جیسے میری دادی کا جب انتقال ہونا تھا تو ان کی وفات سے 1 ماہ پہلے میں نے انہیں قبرستان میں دفن دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک قبر کے پاس سے گزرتی ہوں اور میرے ذہن میں یہی خیال ہوتا ہے کہ یہ میری مرحوم دادی کی قبر ہے، اور 1 ماہ بعد یہ خواب حقیقت میں بدل گیا۔ ان کی وفات کے بعد جب میں بابا کے ساتھ قبرستان گئی تو میرے خواب جیسا منظر ہی بن گیا۔ آہستہ آہستہ انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے، سو مجھے بھی آ گیا۔ اس کے علاوہ بھی مجھے اکثر سچے خواب آتے رہتے تھے، لیکن میں بہت زیادہ اپنے خوابوں کی طرف توجہ نہیں دیتی تھی۔ میری پھپھو کہا کرتی تھی کہ میں بہت زیادہ خوابوں کے پیچھے نہ بھاگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہی میں گم ہو جاؤں۔ ماما کی مخالفت کرنے کے باوجود بھی میں نے تفسیر قرآن کے کورس میں داخلہ لے لیا۔ میں وہاں عبایا پہن کر جاتی تھی کیونکہ ان کا یونیفارم عبایا اور سکارف تھا۔ عبایا اور سکارف کے اندر میری پرسنالٹی بہت اچھی لگتی تھی۔ مجھے وہاں جا کر بہت سکون ملتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے یہ کورس پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، میں بہت دیر سے یہاں پر آئی ہوں۔ لیکن پھر خود کو تسلی دیتی کہ دیر آئے درست آئے۔ اگر میں اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزار دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ اکثر آیات میرے سامنے آ جاتی جن میں میرے سوالوں کا جواب چھپا ہوتا تھا، اور میں دنگ رہ جاتی تھی کہ اللہ کیسے میرے سوالوں کا جواب اپنے کلام کے ذریعے دیتا ہے۔
तशक्कुर के मारे आंखों में आंसू आ जाते। ख़ास तौर पर अपने घर वालों के रवैये देखकर मैं बहुत दुखी हो जाती, लेकिन कोई न कोई आयत मेरे सामने आ जाती जिससे मेरे दिल को हौसला मिल जाता कि ये दुनिया सिर्फ खेल तमाशा है। यहाँ पर हम आर्जी तौर पर क़याम पज़ीर हैं, इसके बाद आखिरत का घर ही सब कुछ है। रोज़ हम अपने सामने कितने लोगों को इस दुनिया से जाता देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम इबरत नहीं पकड़ते। मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि वो मुझे पाकीज़ा मौत और पाकीज़ा ज़िंदगी नसीब करे, मुझे और मेरे घर वालों को हिदायत दे और सीधी राह पर चलाए, उस राह पर चलाए जिस पर चलने का उसने हमें हुक्म दिया है। एक दिन मैं अपनी क्लासेस लेने के बाद वहाँ से सीधा अपनी फुप्पो के घर चली गई। घर मैंने फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं लेट आऊँगी। मुझे देखकर फुप्पो बहुत खुश हुई। फुप्पो का एक बेटा और 2 बेटियाँ थीं। एक बेटी उनकी शादीशुदा थी और एक बेटा और एक बेटी अभी ज़ेरे तालीम थे। मेरी उनके साथ भी बहुत दोस्ती थी। फुप्पो ने मेरे लिए ख़ास तौर पर मेरी पसंद का खाना बनाया। मैंने वहाँ पर पेट भर के खाना खाने के बाद बहुत सारी बातें की। फुप्पो मुझसे मेरी क्लासेस के बारे में पूछने लगी कि मुझे वहाँ पर जाना कैसा लगता है। मैं उन्हें कहने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे वहाँ कितना सुकून आता है, बल्कि अब तो मुझे यह पछतावा होता है कि मैंने पहले क्यों वहाँ एडमिशन नहीं दिया, इतना वक्त ज़ाय कर दिया। फुप्पो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि जब अल्लाह का हुक्म होता है इंसान तभी कोई काम कर सकता है। यकीनन तुम्हारे लिए इस वक्त तफसीर को पढ़ना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि तुम चीज़ों को अब पहले की निस्बत ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हो। इंसान वक्त के साथ साथ ज़्यादा मैच्योर होता जाता है, उसके दिमाग की गिरहें खुलती जाती हैं। मैं फुप्पो की बात से इत्तेफाक करने लगी। मुझे यहाँ आए काफ़ी वक्त हो चुका था। मैंने फुप्पो को कहा कि वो अपने बेटे मुईद को कहे कि वो मुझे घर ड्रॉप कर दे। उसके पास गाड़ी तो थी नहीं, उसने मुझे मोटरसाइकिल पर ही ड्रॉप करने जाना था। पहले तो मुझे मोटरसाइकिल पर ठीक से बैठना भी नहीं आता था, लेकिन अब मैं उसके साथ काफ़ी दफ़ा घर जा चुकी थी, तो अब मुझे बैठने में आसानी हो जाती थी। मैंने अपने अबाया को अच्छी तरह पकड़ा और मोटरसाइकिल पर बैठ गई। वो बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा था। मैंने उसे कहा कि वो आराम से चलाए, मुझे डर लगता है, लेकिन वो मुझे चिढ़ाने के लिए मज़ीद रफ्तार को बढ़ाने लगा। मेरा दिल किया मैं अभी के अभी मोटरसाइकिल से उतर जाऊं, लेकिन वो हंस रहा था। वो ऐसे ही मुझे चिढ़ाया करता था। न जाने उसे मुझे तंग करने में क्या मज़ा आता था। कुछ ही देर में हमारा घर आ गया। मैं उतरी और गुस्से से उसे डांटने लगी, लेकिन उसे कोई असर ना हुआ और वो इतना ऊंचा ऊंचा हंसने लगा था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं चिढ़कर अंदर चली गई। उसे अंदर आने को भी ना कहा। वो भी हंसता हुआ वहीं से वापस चला गया। घर दाखिल हुई तो सामने ही लाउंज में बाबा बैठे नजर आए। मुझे देखकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। मैं भी बाबा के पास जाकर बैठ गई। वो मुझे कहने लगे कि मैं किसके साथ आई हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं मुईद के साथ आई हूँ। उन्होंने मुझे डांटा कि मैंने उसे अंदर क्यों नहीं बुलाया। मैंने बाबा को कहा कि सॉरी बाबा, मुझे ध्यान नहीं रहा। बाबा कहने लगे बेटा ऐसी बातों का ध्यान रखा करो। मैंने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन मुझे क्लासेस से ऑफ था। मैं घर पर ही थी। माली बाबा से लॉन की काट छांट करवा रही थी। मुझे पौधे बेहद पसंद थे। मैं अपने लॉन में लगे हुए पौधों का खास ख्याल रखती। पूरा दिन इसी तरह छोटे मोटे कामों में गुजर गया। रात को जब मैं सोने के लिए लेटी तो ज़िक्र अज़कार के बाद मेरे जहन में मुख्तलिफ ख़यालात चलने लगे। मैं अपने जीवन साथी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इसी टॉपिक के बारे में पढ़ा था कि इंसान को ऐसा जीवन साथी मिलना चाहिए जिसके साथ ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी बेहतर हो। हर नमाज के बाद अल्लाह से यही दुआ करती थी कि मुझे ऐसा शौहर दे जो ना सिर्फ मेरी दुनिया संवार दे बल्कि आखिरत भी, और मुझे भी ऐसी बीवी बनने की तौफीक दे जो अपने शौहर के लिए बाइस रहमत हो। ऐसी ही बातें सोचते सोचते न जाने कब मैं नींद की वादी में चली गई। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी शादी है। हर तरफ बहुत ज़्यादा चहल पहल थी, बल्कि कुमकुमों ने पूरे घर को सजा रखा था। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन जब बारात आई तो वो किसी इंसान की नहीं बल्कि जिन्नात की थी। मैं बारात देखकर हैरान रह जाती हूँ, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होता कि जिन्नात मेरी बारात लेकर आएंगे। मैं वहीं हद तक खड़ी थी। अचानक मेरी आँख खुल गई। आज से पहले मुझे ऐसा ख्वाब कभी नहीं आया था। मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन फिर मैंने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि इस तरह के ख्वाब की कोई ताबीर नहीं होती। एक इंसान और जिन की शादी मुमकिन ही नहीं। इसलिए मैंने इस ख्वाब को सर झटक कर भुलाने की कोशिश की और अपनी रूटीन के कामों में मगन हो गई। उन्हीं दिनों मामा को मेरी शादी का शौक चढ़ गया।
میں نے ماما سے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ان کی کلاس کے کسی بھی لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ تمام لڑکے میری سمجھ میں نہیں آتے، نہ ہی ان کے ساتھ میرا کسی قسم کا جوڑ بنتا ہے، لیکن ماما چاہتی تھی کہ میں اپنی ہی کلاس کے کسی لڑکے سے شادی کر لوں۔ میں نے ماما سے کہا کہ پھر وہ میری ہی طرح کی سوچ رکھنے والے کسی لڑکے کو پسند کرے، تبھی ایسا ممکن ہے، لیکن ماما اپنی مرضی سے میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں سمجھایا اور کہا کہ اگر آپ واقعی لبرل ہے تو پھر آپ کو میری پسند کو مد نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ زندگی تو میں نے گزارنی ہے، انہوں نے نہیں۔ ماما کو لگ رہا تھا کہ میں اپنی زندگی ان سب چیزوں کے پیچھے خراب کر رہی ہوں، لیکن میں انہیں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ میں اپنی زندگی کو خراب نہیں بلکہ سنوار رہی ہوں۔ میں ماما کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرتی تھی، بہت اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بات ان تک پہنچانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن ماما کا بی پی ہائی ہو جاتا تھا۔ ماما کی پسند کے عین مطابق جب 3 سے 4 رشتے میرے لیے آئے اور میں ان کے سامنے گئی تو انہوں نے خود ہی انکار کر دیا، کیونکہ انہیں ایک بہت ہی ماڈرن اور فیشنیبل لڑکی چاہیے تھی، جبکہ میں اس کے بالکل الٹ تھی۔ ماما نے مجھے اپنا حلیہ بدلنے پر زور دینا شروع کر دیا۔ ان سب چیزوں کی وجہ سے میں بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو رہی تھی۔ ایک دن میں بابا کے سامنے رونے لگ گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں یہاں سے چلی جاؤں گی، مجھے فورس کرنا بند کریں۔ میں کچھ دنوں کے لیے بابا کی پرمیشن سے پھپھو کے ہاں رہنے چلی گئی۔ ماما نے اس بات کی بہت مخالفت کی، لیکن مجھے ذہنی سکون کی تلاش تھی۔ میں نے ماما کو کہا کہ اگر انہیں ذرا سی بھی مجھ سے محبت ہے تو وہ مجھے نہیں روکیں گی۔ پھپھو کو بھی ساری صورتحال کا علم ہو چکا تھا۔ وہ مجھے سمجھانے لگی کہ میں اللہ سے دعا کیا کروں، یقیناً اللہ تعالیٰ میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ وہاں آ کر مجھے ذہنی طور پر تھوڑا سکون نصیب ہوا، کیونکہ مجھے کسی کے ساتھ بحث نہیں کرنی پڑ رہی تھی۔ میں وہیں سے اپنی تفسیر کی کلاسز لینے چلی جایا کرتی تھی۔ پھپھو کا بیٹا معید مجھے پک اینڈ ڈراپ دے دیتا۔ ایک دن میں صبح کے وقت تلاوت کر رہی تھی۔ میری تجوید بہت اچھی تھی۔ میں نے اپنی تفسیر کی کلاسز کے دوران اپنی تجوید کو بھی بہت بہتر کیا تھا۔ میری آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی موجود ہے۔ میں نے اپنا ذہن سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ پھپھو کے گھر میں بھی ایک لان تھا، وہاں پر چند ایک درخت لگے ہوئے تھے۔ وہاں سب سے بڑا ایک جامن کا درخت تھا۔ مجھے جامن بے حد پسند تھے۔ میں اکثر جامن کے سیزن میں وہاں سے جامن اتروا کر کھایا کرتی تھی۔ میں اکثر اس درخت کو بڑے غور سے دیکھتی۔ وہ بہت لمبا سا تھا، آس پاس پرندوں کی آوازیں اور خاموش سی فضا، وہ منظر مجھے بہت بھلا لگتا۔ کافی دیر تک میں تلاوت کرتی رہی۔ جب میں نے تلاوت مکمل کر لی تو اچانک مجھے آواز آئی، سبحان اللہ! میں چونک گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو مجھے کوئی نظر نہ آیا، لیکن وہ آواز بہت واضح تھی۔ اسی دوران میرا کزن معید مجھے آتا دکھائی دیا۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ شاید اسی نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں۔ خیر، میں نے اس بات پر زیادہ غور نہ کیا۔ اس کے بعد میں لان میں بیٹھ کر تلاوت کرنا شروع ہو گئی۔ وہاں پر جتنے بھی پرندے تھے وہ سب میرے آس پاس خاموشی کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب تک میں تلاوت کرتی رہتی وہ بھی خاموشی کے ساتھ سنتے رہتے۔ جو ہی میں تلاوت کرنا روک دیتی وہ سب پرندے اڑ کر کہیں چلے جاتے۔ مجھے کافی دفعہ سبحان اللہ کی آوازیں بھی آتی تھی، لیکن میں یہ نہیں جان پاتی تھی کہ یہ آواز آتی کہاں سے ہے۔ میرا دل کیا کہ میں یہ بات پھپھو سے شیئر کروں، لیکن پھر میں نے ارادہ بدل دیا، کہیں وہ پریشان ہی نہ ہو جائیں۔ ایک دن میں نے تلاوت نہ کی تو مجھے لان کے اندر بے حد شور سنائی دیا۔ بہت سارے پرندے وہاں پر شور مچا رہے تھے، جیسے ادھم مچا ہوا ہو یا انہیں کوئی بے چینی لاحق ہو۔ اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید آج میں نے تلاوت نہیں کی، اس وجہ سے یہ بے چین ہو رہے ہیں۔ میں وضو کر کے آئی اور تلاوت کرنی شروع کر دی۔ میرے تلاوت کرنے کی دیر تھی کہ خاموشی چھا گئی۔ یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ وہ چرند پرند بھی میرے ساتھ اللہ کے کلام کو سنتے تھے۔ اب تو مجھے پھپھو کے گھر سائے بھی چلتے محسوس ہوتے۔ کبھی کبھی یوں لگتا جیسے کسی نے وضو کیا ہو اور باتھ روم سے نکل کر چھت کی سیڑھیوں پر گیا ہو۔ میں نے ایک دفعہ پھپھو سے اس بات کا ذکر کیا۔ پھپھو کہنے لگی کہ ان کے اوپر والے کمرے میں ایک نیک جن رہتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں پر جمعرات کو اگربتیاں جلاتے ہیں۔ انہوں نے کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے میں اس بات سے پریشان نہ ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ آج سے پہلے تو آپ نے مجھ سے اس بات کا کبھی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج سے پہلے انہوں نے تمہارے سامنے خود کو کبھی ظاہر بھی نہیں کیا۔ اب اگر تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہے تو تم ڈرو مت، وہ کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔
बस कभी भी छत वाले कमरे में जाने की कोशिश ना करना, क्योंकि उन्हें किसी का आना वहाँ पसंद नहीं। फूफो ने वैसे भी उस कमरे को लॉक किया हुआ था। मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि इस कमरे को लॉक करने के पीछे उनका क्या मकसद है। कुछ दिन वहाँ क़याम करने के बाद मैंने दोबारा अपने घर वापसी की राह ली। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि मैं घर वापस जाऊं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद दोबारा से वही सब शुरू हो जाना था जिससे मैं भागकर यहाँ आ गई थी। मुझे देखते ही मामा कहने लगी, तुम्हें घर वापस आने की क्या ज़रूरत थी? तुम चाहो तो सारी ज़िंदगी वहीं गुजार सकती हो। उनके लहजे में तंज की आमेजिश मुझे साफ तौर पर महसूस हो गई। वो जैसी भी थी मेरी माँ थी। मैं उनके साथ कभी बदतमीज़ी से पेश नहीं आना चाहती थी, ना ही उनकी दिल आज़ारी करना चाहती थी, लेकिन वो मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखिरकार उनसे तंग आकर मैंने उन्हें कह दिया कि वो जैसा भी रिश्ता मेरे लिए ढूंढ कर लाएंगी मुझे कबूल है, लेकिन वो मुझे मेरा हुलिया तब्दील करने के लिए मजबूर मत करे। वही मेरा रिश्ता करे जो लोग मुझे मैं जैसी हूँ वैसे ही कबूल करे। ये सुनकर मामा को थोड़ी तसल्ली हो गई और वो खामोश हो गई। फूफो के घर से आने के बाद रोज़ मुझे ख्वाब में उनके घर का भी मंजर दिखाई देता, जहाँ मैं तिलावत कर रही हूँ और बहुत से परिंदे मेरे आसपास है। कभी मुझे वो बुजुर्ग जिन्नात भी दिखाई देते। अक्सर वो मेरे ख्वाब में आकर मुझे कोई इशारा देते थे, लेकिन मुझे उनके इशारे की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैं थोड़ी सी खौफजदा भी हो गई, क्योंकि मेरा कभी इस मखलूक से आज से पहले पाला नहीं पड़ा था। मैंने सिर्फ नाम की हद तक सुना हुआ था। खैर, एक दिन मैं फूफो से मिलने गई तो मैंने उनसे अपने ख्वाब के बारे में जिक्र किया। फूफो भी ख्वाब में मौजूद इशारे को ना समझ सकी। इसी दौरान अचानक हमें किसी के कदमों की चाप सुनाई थी। मैंने और फूफो ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नज़र ना आया। कुछ ही देर के बाद अचानक हमें वहाँ एक बुजुर्ग का साया नज़र आना शुरू हुआ। ये वही नेक बुजुर्ग थे जिनका क़याम फूफो के ऊपर वाले कमरे में था। फूफो ने भी आज से पहले उन्हें सरापा मुजस्सम नहीं देखा था। मैं और फूफो कतई तौर पर इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमारे लिए ये सूरत हाल बहुत ही गैर मुतवक्किल थी। उनके आने से हम दोनों उनकी रूपदार शख्सियत के ज़ेरे असर आ गए। हमसे एक लफ्ज़ भी अदा ना हुआ। उनके चेहरे पर बहुत नूर था। इतना पुरनूर और रोशन चेहरा मैंने आज से पहले कभी किसी का नहीं देखा था। उनकी मौजूदगी से हमें एक ठंडक का एहसास हो रहा था, जैसे बहुत ही कोई पॉजिटिव एनर्जी हर तरफ फैल गई हो। हमारे चेहरों से साफ पता चल रहा था कि हम दोनों उनकी शख्सियत से मुतासिर हो चुकी है। उन्होंने हमें कहा कि हम दोनों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। वो किसी ख़ास मकसद के लिए हम दोनों के पास आए हैं। हम दोनों ने बस खामोशी के साथ सर हिला दिया। कुछ कहने की हिम्मत ही ना हुई। उन्होंने बोलना शुरू किया। उन्हें मेरी तिलावत बहुत पसंद थी। वो चाहते थे कि मैं जिन्नात को भी उसकी तालीम दूँ। जिन्नात में भी औरतें थीं और बच्चे थे जिनको वो तालीम दिलवाते थे। मैंने बगैर सोचे समझे हामी भर ली। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें वक्त बता दूं किस वक्त वो तमाम बच्चे मेरे पास पढ़ने आए। रोज़ रोज़ फूफो के घर आकर मैं बच्चों को पढ़ा नहीं सकती थी। मेरे लिए ये बात मुश्किल थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं वक्त के बारे में उन्हें बाद में बताऊंगी। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और उसी खामोशी के साथ चले गए जैसे वो आए थे। बहुत देर तक मैं और फूफो इस बात के ज़ेरे असर रही। मैं कहने लगी, मैंने हामी तो भर ली है, लेकिन मैं इसको कैसे मैनेज करूंगी? मेरे घर के अंदर तो ये बात मुमकिन नहीं थी। मैंने बहुत सोचा और मेरे जहन में एक ही तरकीब आई कि मैं अपनी क्लासेस लेने के बाद सीधा फूफो के घर आया करूंगी और 1 घंटा उन सबको तालीम दूंगी और इसके बाद फिर चली जाया करूंगी। मुझे यही ऑप्शन सबसे बेहतर नज़र आ रहा था। मेरे घर में तो ये चीज़ बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी। मामा ने तो हंगामा खड़ा कर देना था। वो तो पहले ही मुझसे नालान थी। अब मज़ीद वहाँ पर बच्चों की फ़ौज देखकर उनका चिढ़ना तो यकीनी था। घर में मेरे रिश्ते भी देखे जा रहे थे। मैंने सब अल्लाह पर छोड़ दिया और वैसा ही करने लगी जैसा मामा चाहती थी। लेकिन अभी तक मामा के मयार पर भी कोई पूरा नहीं उतर रहा था। कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते थे और अगर कोई रिश्ता मुझे पसंद करता था तो वो मामा को पसंद नहीं आता था। मैं भी रिश्ते वालों के सामने जा जाकर बेजार हो चुकी थी, लेकिन मामा को कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैं क्लासेस के बाद डेली अपनी फूफो के यहाँ बच्चों को तालीम देने के लिए जाना शुरू कर चुकी थी। पहले दिन जब मैंने उन बच्चों को देखा तो वो बिल्कुल इंसानी शक्ल में मेरे सामने आए थे, इसलिए इंसान के बच्चे ही लग रहे थे। उनके साथ कुछ ख़वातीन भी थी। वो सब बहुत दिलचस्प निगाहों से मुझे देख रहे थे। मेरा ज़िंदगी में ये पहला तजुर्बा था जब मैं किसी को कुरान की तालीम देने लगी थी।
मेरे लिए भी ये एहसास बहुत खूबसूरत था कि मैं अल्लाह के कलाम को किसी को पढ़ना सिखा रही हूँ और मेरी तालीम किसी के काम आ रही है। मैं ये सब काम सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रज़ा की खातिर कर रही थी। न जाने कब जिंदगी का चराग गुल हो जाए। मैं चाहती थी मरने से पहले कोई ऐसा काम कर जाऊं जिससे मेरे मरने के बाद भी मुझे सवाब मिलता रहे। कुछ देर तक तो सब मेरी तरफ देखते रहे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। मैंने अल्लाह का नाम लिया और सब बच्चों को एक तरतीब से बिठाया और एक साइड पर उन तमाम खवातीन को बैठने को कहा। मैंने उनसे कहा कि वो कल से नूरानी कायदे लेकर आएं। नूरानी कायदे का नाम भी बताया। वो बच्चे बहुत ही शरारती बच्चे थे। मुझे शुरू में उन्हें कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल पेश आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उन्हें डील करना सीख लिया। जो खवातीन मेरे पास पढ़ने आती थी उन्हें इस बात में बहुत दिलचस्पी होती थी कि वो मेरे बारे में मालूम करे, मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ। मुझे इस बात पर बहुत हंसी आती क्योंकि इंसानों के यहाँ भी औरतों को इन तमाम बातों में बहुत दिलचस्पी होती थी। कौन क्या कर रहा है, कहाँ से आया है, उसकी ज़िंदगी के मामलात क्या है। शायद ये तमाम मखलूक़ात की औरतों में ये चीज़ फितरी तौर पर पाई जाती थी। शुरू में मुझे उन्हें पढ़ाने में मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी बहुत मज़ा आने लगा। मेरे लिए भी किसी दूसरी मखलूक को पढ़ाना बहुत दिलचस्प तजुर्बा था। वो नेक जिन भी कभी कभार हमारे सामने आया करते थे, लेकिन वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए वहाँ ठहरे थे। एक दिन मैं सब बच्चों को पढ़ा रही थी। सबक पढ़ाने के बाद मैंने उन्हें कहा कि वो अपना पिछला सबक दोहराएं और मुझे आकर बारी बारी हर बच्चा अपना सबक सुनाए। एक बच्चा जो मेरे पास सबक सुनाने आया, उसने मेरे साथ शरारत शुरू कर दी। वो अचानक से मेरे पीछे छुप जाता और जब मैं मुड़कर देखती तो सामने की तरफ चला जाता। फिर जब मैं सामने देखती तो तब वो कहीं नजर ना आता। कुछ देर तक तो वो इसी तरह मेरे साथ शरारत करता रहा। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली और उसे कुछ ना कहा। कुछ देर तक उसने इंतज़ार किया। जब उसने देखा कि मैं बिल्कुल भी नहीं चिढ़ रही या मैंने अपनी नागवारी का इजहार नहीं किया, तो वो खुद ही शराफत के साथ मेरे सामने आ गया और नज़रें झुकाकर खड़ा हो गया। कुछ देर तक मैं उसे देखती रही। फिर मैंने हल्की सी चपत उसके सर पर लगाई और कहा कि इस बार तुम्हें इस शरारत पर माफ़ी मिल चुकी है, लेकिन अगली बार तुम्हें सख्त सज़ा दूंगी या तुम्हारी शिकायत मैं तुम्हारे बाबा से करूंगी। ये सुनते ही वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि वो आइंदा मेरे साथ कभी ऐसी शरारत नहीं करेगा। मैंने तमाम बच्चों को समझाया कि पढ़ाई के दौरान किसी किस्म की भी शरारत करना मना है। ये आदाब के सख्त खिलाफ है। उमूमन वो सब मेरे साथ अच्छे तरीके से ही पेश आते थे और मेरा उस्ताद की तरह ही एहतराम करते थे। कभी कभार वो मेरे लिए तहाइफ भी लेकर आते, जैसे बहुत सी खजूरें। उनमें से अक्सर जन्नात उम्र अदा करने जाते तो वो मेरे लिए वहाँ से ख़ास तौर पर आब ज़मज़म और बहुत सी कीमती खजूरें लेकर आते। कभी कोई बच्चा मेरे लिए बहुत ही नायाब किस्म के फूल लेकर आता। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती क्योंकि मैं मना करके उनके दिल को तोड़ना नहीं चाहती थी। एक दो दफ़ा वो मेरे लिए बहुत कीमती जेवर भी लाए, लेकिन मैंने उन्हें बहुत प्यार से मना कर दिया कि मैं इस तरह के जेवर नहीं पहनती। और मैंने अपने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं जिन्नात को पढ़ाती हूँ। ये जेवर देखकर सब मुझसे सवाल करेंगे और मैं झूठ बोलना नहीं चाहती। झूठ बोलने से अल्लाह नाराज़ होता है और रहमत के फरिश्ते इंसान से दूर हो जाते हैं। अगर इंसान मुसलसल झूठ बोले तो वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिख दिया जाता है। इसलिए हमें ऐसे काम करने से गुरेज करना चाहिए जिसमें हमें झूठ बोलना पड़े। वो मेरी बात समझ गए और उन्होंने इस तरह के तहाइफ लाना छोड़ दिया। जिन्नात की औरतें मेरे पास तफसीर भी पढ़ना चाह रही थी, लेकिन मेरी अपनी क्लासेस भी अभी पूरी नहीं हुई थी और मुझे नहीं लगता था कि मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उन्हें बहुत प्यार से मना किया कि जब मेरा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा और मुझे लगेगा कि मैं किसी को आगे ये तालीम दे सकती हूँ, तो तब मैं ज़रूर लोगों को अपने रन से इस्तेफ़ादा हासिल करने की तौफीक दूँगी। ज़िंदगी बहुत मज़े में जा रही थी। आजकल तो मामा ने रिश्ते देखने भी कम किए हुए थे। कुछ दिनों से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो अपने सोशल सर्कल में भी कम ही दिखाई दे रही थी। मैं रोज़ मामा को खुद अपने हाथों से दवाई देती, उनकी खिदमत करती। मेरे बाकी दो बहन भाई सिर्फ दूर से ही उनका हाल पूछते थे। इसके बाद अपने अपने कामों में बिजी हो जाते थे। उन्होंने कभी मामा के पास बैठकर ना उन्हें दवाई दी, ना ही खिदमत करने की कोशिश की। मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी, लेकिन मेरे मामा के सामने इस बात का इजहार नहीं किया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी वजह से किसी जहनी तनाव का शिकार हों। कुछ दिन बाद मामा की तबीयत एकदम से ठीक हो गई। दोबारा से उन्होंने अपनी मुहिम जारी कर दी, यानी मेरा रिश्ता तलाश मुहिम।
2-3 दिन से मेरी अपनी तबीयत भी कुछ नासाज थी। मैंने पप्पू को कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाने नहीं आ सकूंगी, आप उन्हें बता दें। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा पूरा कमरा रंग बिरंगे फूलों से महका हुआ था। मेरी समझ में बिल्कुल न आया कि ये फूल कहाँ से आ गए। काफ़ी देर तक मैं यही बैठी सोचती रही। मेरी नज़र सामने सोफे पर पड़ी तो मुझे अपना एक स्टूडेंट दिखाई दिया, तो एकदम मेरे जहन में बिजली की तरह ख्याल कूदा, यह सब यकीनन मेरे तालिबे इल्मों की तरफ से आया है। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरे घर में इस बात का किसी और को इल्म हो। मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया और उसे कहा कि वो तमाम फूल उठा ले। ऐसा न हो कि कोई देख ले और मैं फिर आप लोगों को तालीम देना जारी नहीं रख सकूंगी। उसने जल्दी जल्दी मेरे हुक्म की तामील की और वो तमाम फूल वहाँ से गायब कर दिए। मैंने भी सुकून का सांस लिया। वो सब बच्चे मेरे साथ बहुत मानूस हो चुके थे और औरतें भी। मुझे भी उनसे बहुत उनसियत महसूस होती थी। वो मेरी बहुत इज्जत और कदर करते थे। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं उन बच्चों को तालीम दे रही हूँ। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती थी कि उसने मुझे इस काबिल समझा। एक दिन मैं उन सबको पढ़ा रही थी कि अचानक मुझे वहाँ पर एक नौजवान जिन का अक्स दिखाई दिया। मुझे लगा शायद ये मेरी नज़र का धोखा है, लेकिन मुझे वक्फे वक्फे से उसकी झलक नज़र आ रही थी। लेकिन मैंने इस बात का इजहार वहाँ पर मौजूद किसी से नहीं किया। चंद दिन तक ऐसा ही होता रहा, लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया और खामोशी के साथ अपना काम करती रही। मुझे अक्सर अपनी शादी का ख्वाब भी आने लगा। हमेशा वो ख्वाब उसी से मुताल्लिक होता कि मेरी शादी किसी जिन के साथ तय पा रही है। मैं नहीं जानती थी कि वो ख्वाब मुझे नज़र क्यों आता है। मैं यही सोचती थी कि शायद मैं जिन्नात को तालीम दे रही हूँ और मैंने अपने जहन पर इन लोगों को बहुत ज़्यादा सवार कर लिया है, इस वजह से ऐसा मेरे साथ हो रहा था। मैं उस ख्वाब को इग्नोर कर देती, लेकिन उस नौजवान जिन का अक्स दिखाई देना मुझे अभी भी बंद नहीं हुआ था। अक्सर औकात मुझे अपने आसपास भी वो दिखाई देता, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए मैं उसको देख पाती। इसके बाद वो मेरी नज़रों से ओझल हो जाता। न जाने क्यों वो मेरे साथ आंख मचोली का खेल खेल रहा था। मैं इस खेल से तंग आ चुकी थी। एक दिन मैंने उसे साफ तौर पर मुखातिब किया और कहा कि वो जो कोई भी है वो मेरे सामने आ जाए। ऐसे आंख मचोली का खेल खेलना बंद करे, वरना मैं उन बुजुर्ग जिनको तुम्हारे बारे में बता दूंगी। ये धमकी सुनकर वो मेरे सामने आ गया। अपने सामने पाकर मैंने उससे कहा कि वो मुझे तंग क्यों कर रहा है। अगर वो मुझसे तालीम हासिल करना चाहता है तो वो साफ तौर पर मुझे ये बात बता सकता है। उसने कहा कि मैंने उन बुजुर्ग जिन से इजाज़त मांगी थी, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। मैंने उससे कहा कि उन्होंने इसलिए मना किया था क्योंकि मैं मर्द हजरात को तालीम नहीं दे सकती, लेकिन वो गायब रहकर भी सुनकर कुछ न कुछ ज़रूर सीख सकता है। बेहतर यह है कि वो मेरे सामने आने की कोशिश ना करे, ना ही मुझे मुखातिब करे। वो कहने लगा कि उसे मेरी आवाज़ बेहद पसंद है। उसने जब से मेरी तिलावत सुनी है वो मेरी आवाज़ का दीवाना हो गया है। वो जब भी मुझे तिलावत करते सुनता है तो बेखुद सा होकर सुनने के लिए आ जाता है। उसे इस बात पर इख्तियार नहीं है। मेरी आवाज़ की वजह से वो मुझसे मोहब्बत करने लगा है, और जो ख्वाब मुझे जिन्नात की शादी का नज़र आता है वो भी वही मेरे जहन में ये ख्वाब लाता है। मेरे लिए ये बात बहुत हैरानगी का बाइस थी कि एक जिन मेरे जहन में ये सब ला रहा है। वो कहने लगा कि वो जिन्नात का सरदार है, और वो पहला ऐसा सरदार है जो इतनी कम उम्री में एक कबीले का सरदार बना है, वरना तो इस मकाम तक पहुंचने के लिए उनकी आधी से ज़्यादा उम्र गुजर चुकी होती है, मगर वो अपनी काबिलियत की वजह से इस मकाम पर जल्दी पहुंच गया। उसने मजीद कहा कि जिन्नात की उम्रें बहुत तवील होती है, 200 साल का तो उनके यहाँ बच्चा माना जाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे जहन में धमाके होने लगे कि मेरी तिलावत भी क्या किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर सकती है। आज तक मैं इंसानों के दिल में अपने लिए इस हवाले से कभी मोहब्बत पैदा ना कर सकी, लेकिन जिन्नात और परिंदे तो मेरी आवाज़ के दीवाने हो रहे थे। मेरी कैफियत अजीब सी हो रही थी। मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए था या हैरान, मैं ये फैसला नहीं कर पा रही थी। जिस मोहब्बत और इज़्ज़त की तवक्को मैं इंसानों से करती थी वो सब मुझे जिन्नात से मिल रहा था, लेकिन मैं ये बात भी हजम नहीं कर पा रही थी कि एक जिन मुझसे मोहब्बत करने लगा है। मैं हमेशा से एक अच्छे और नेक इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखती थी, जिसके साथ मैं इस दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई पा सकूं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर जन्नत में जा सके। अचानक किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला और इसके साथ ही वो जिन भी गायब हो गया। बाबा मेरे कमरे में दाखिल हो चुके थे। वो अपने किसी दोस्त के यहाँ जा रहे थे और वो चाहते थे कि मैं भी उनके साथ चलूं।
मैंने उन्हें कहा कि वो बस कुछ देर इंतज़ार करें, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। तैयार होने के बाद हम लोग गाड़ी में बैठकर बाबा के दोस्त के यहाँ पहुँचे। उन्होंने मेरा इस्तकबाल बहुत अच्छे तरीके से किया। उनका स्टेटस भी हमारे जैसा ही था। उनके यहाँ भी पैसे की खूब रेल पेल थी। वो सब घर वाले मुझसे बहुत ही पुरतपाक अंदाज में मिले। उनके घर का माहौल भी मुझे इस्लामी लगा, जो मेरे लिए बहुत ही खुशगवार हैरत का बायस बना। पापा के दोस्त का बेटा भी बाबा से बहुत अच्छे अंदाज से मिला। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी जो उसके चेहरे को बहुत खूबसूरत बना रही थी। उसने एक नज़र भी मेरी तरफ नहीं देखा। उसकी निगाहों में मुझे हया नज़र आई। वो बिल्कुल मुझे अपने आइडियल के मुताबिक लग रहा था। वहाँ पर काफ़ी देर में बैठी रही। मुझे उन लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आया। उनके मिजाज मुझे अपनी तरह के लग रहे थे। वो मुझसे मेरी मसरूफियत के बारे में पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं आजकल कुरान पाक की तफसीर की क्लासेस ले रही हूँ। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली दफ़ा किसी इंसान ने फुप्पो के अलावा मेरी तफसीर पढ़ने पर तारीफ़ की थी और खुशी का इजहार किया था, वरना तो सब लोग मुँह ही चढ़ाते थे। उनके ऐसे रद्द अमल देखकर मेरा दिल बहुत बुरा होता था। मुसलमान होने के बावजूद भी हम लोग अपने दीन से बहुत दूर थे और अंग्रेज़ों के तर्ज़ ज़िंदगी को अपना रहे थे। मुझे अपने दिल से एक बोझ सरकता हुआ महसूस हो रहा था। वापसी पर बाबा मुझसे पूछने लगे कि मुझे वो लोग कैसे लगे। मैंने बाबा को बताया कि मुझे सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। बाबा ने मुझे कहा कि उनके बेटे से वो मेरा रिश्ता तय करना चाह रहे हैं। अगर मुझे कोई एतराज़ ना हो तो मैं उन्हें अपने घर खाने पर बुलाना चाहता हूँ। मैंने बाबा से कहा कि क्या उन लोगों ने आपसे मेरे रिश्ते की बात की है। बाबा ने इस बात पर सर हिला दिया, लेकिन बाबा को मेरी खुशी बहुत अजीज़ थी, इसीलिए उन्होंने मुझे पहले उन लोगों से मिलवाया ताकि मैं इस रिश्ते पर दिल से राज़ी हो सकूं। अब अगला काम मामा को मनाने का था। वो बाबा खुद ही कर सकते थे। मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं था कि मैं अपनी माँ को कन्विंस कर सकती। बाबा ने मामा को न जाने क्या कहा, लेकिन मामा भी मुझे इस रिश्ते पर पुरसुकून और मुतमईन दिखाई दे रही थी। मैंने भी शुक्र का सांस लिया। मैं अभी तक फुप्पो के घर उन बच्चों को तालीम दे रही थी। उस दिन के बाद से वो जिन भी मुझे दोबारा नज़र नहीं आया। मेरे जहन से भी उसका ख्याल महव हो चुका था। पापा ने अपने दोस्त की फैमिली को एक दिन डिनर पर मद्दऊ किया। मामा ने बहुत अच्छी तरह सब डिनर की तैयारी की। मैंने भी अच्छा सा लिबास ज़ेब-ए-तन किया और अच्छी तरह दुपट्टे से हिजाब किया। मैं खुद को बहुत अच्छी तरह कवर करके रखती थी। वो लोग वक्त के बहुत पाबंद लग रहे थे, क्योंकि अपने दिए गए टाइम के मुताबिक वो हमारे घर पहुंच गए। वक्त की पाबंदी का हमारे मज़हब में भी बहुत ज़ोर दिया गया है। मैं खुद भी हर काम अपने वक्त पर ही करती थी। हम सब ने बहुत अच्छे से उनका वेलकम किया। बहुत खुशगवार माहौल में बातें होने लगी। उन लोगों के अखलाक बहुत बेहतरीन थे। मामा भी इस बात से बहुत मुतासिर नज़र आ रही थी। हैरत अंगेज़ तौर पर मामा ने उनके सामने कुछ भी शो ऑफ ना किया। मुझे ये तब्दीली अपनी माँ के अंदर बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शो ऑफ करना मुझे हमेशा से सख्त नापसंद था। दोनों तरफ से रिश्ते के लिए हाँ हो चुकी थी। मंगनी के बजाय निकाह की डेट फिक्स कर दी गई। मैं अपनी शादी बहुत सादगी के साथ करना चाहती थी। मुझे नमूदो नुमाइश से सख्त नफरत थी। उन लोगों को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वलीमे का फंक्शन उन्होंने सुन्नत के मुताबिक बड़ा करने का सोचा, जिसमें तमाम गरीब और नादार लोगों को भी मद्दाऊ किया जाएगा। मैं बहुत खुश थी। बड़ी हद तक मेरे स्टूडेंट्स कुरान पाक पढ़ना सीख चुके थे। मैं शादी से पहले उन सबको जल्दी जल्दी सिखाकर ये सिलसिला मुनक़ते करना चाहती थी। शादी के बाद मेरे लिए ये सब रखना नामुमकिन था। फुप्पो भी मेरे रिश्ते पर बहुत खुश थी। मैंने उन सब बच्चों को भी बता दिया था कि जल्द ही मेरी शादी होने वाली है और मैं उन सबको मज़ीद कुरान की तालीम नहीं दे सकूंगी। वो सब बहुत उदास और गमगीन होने लगे। इन्हीं बच्चों के दरमियान मुझे उस जिन का अक्स दिखाई दिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे रिश्ते में किसी किस्म की रुकावट का बायस बने, लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो मेरे पास इसका बेहतरीन हल मौजूद था। मैं उन बुजुर्ग जिन को ये बात साफ तौर पर बता सकती थी और मुझे इस बात पर कामिल यकीन था कि वो उसे किसी न किसी तरीके से रोक लेंगे, इसलिए मैं ज़्यादा परेशानी का शिकार नहीं थी। मैंने जल्दी जल्दी उन सब का कोर्स मुकम्मल किया और उन्हें पढ़ाने का सिलसिला मुनक़ते कर दिया। उन सबको मैंने सख्ती से ताकीद की थी कि वो दोबारा कभी मेरे साथ रब्ता रखने की कोशिश ना करें, ना ही मेरे लिए कोई तोहफे या तहाइफ लेकर आए। एक उस्ताद होने के नाते मैं उन्हें ये हुक्म दे रही हूँ, अगर वो दिल से मेरी इज़्ज़त करते हैं और मुझे अपना उस्ताद मानते हैं तो उन्हें मेरे हुक्म की तामील करनी होगी। उन सब बच्चों ने वाकई मेरी बात मान ली और कभी दोबारा मेरे सामने ना आए। मेरी शादी में सिर्फ 2 महीने ही रह चुके थे।
उन्हीं दिनों मामा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। टाइफाइड की वजह से उनकी हालत काफ़ी बुरी थी। वो अस्पताल में एडमिट रही। मैं दिन रात बस मामा की खिदमत करती रही। घर आने के बाद भी मैं खुद उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती, उनको दवाई देती और उनका ख्याल रखती। मेरे बाकी दोनों बहन भाई सिर्फ रस्मी तौर पर ही माँ का हाल पूछकर वहाँ से गायब हो जाते। ये देखकर मामा को बहुत दुख हो रहा था। मामा हमेशा से मेरी मुखालफत करती थी और उन दोनों का खूब साथ देती। और जब मामा की ये हालत थी तो सिर्फ मैं ही उनके पास थी। उनके दोनों बच्चे उनके पास चंद मिनट बैठना भी गवारा नहीं करते थे। मामा को बहुत पछतावा होने लगा कि उनकी तरबियत में ही कोई कमी रह गई थी। मैं मामा को बहुत हौसला देती और उन्हें समझाती कि आप इस बात के लिए परेशान ना हो, बस आप हम सब के लिए दुआ करें। मामा की आंखों में नमी रहने लगी। मुझे ये बहुत बहुत तकलीफ़ देती थी। मैं उन्हें इस तरह दुखी और उदास नहीं देख सकती थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी माँ के साथ गुजारती। अब उनकी तबीयत कुछ बेहतर थी तो मैंने उन्हें कहा कि क्यों ना आज कहीं बाहर घूमने चले। मैं और मामा पार्क चले आए। पार्क में बैठकर हम दोनों बच्चों को देख रहे थे। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते चेहरे दिल लुभा रहे थे। अचानक मेरे जहन में अपने तालिब इल्मों का ख्याल आया। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। इसके साथ ही मुझे उस जिन का ख्याल भी आ गया जो मुझसे इजहार मोहब्बत कर रहा था। मैं इधर उधर पार्क का जायज़ा ले रही थी। मामा भी बच्चों को खेलते हुए देखने लगी। कुछ देर पार्किंग में वक्त गुजारने के बाद हम घर आ गए। मामा के मूड पर बहुत अच्छा असर पड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता मामा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वो गलत थी। यकीनन कुरान की तालीम लड़कियों के लिए बेहद ज़रूरी है। ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि हर इंसान के लिए उसका हासिल करना फ़र्ज़ है। मामा की तबीयत में बदलाव आ रहा था। उनके अंदर ये तब्दीली मेरे लिए बाइस रहमत थी, क्योंकि अब घर में कोई भी मेरी मुखालफत नहीं करता था। मामा भी मेरे साथ कुरान की तफसीर के लिए जाना चाहती थी, लेकिन मेरा कोर्स मुकम्मल हो चुका था। मैंने मामा को कहा कि मैं उनका एडमिशन करवा देती हूँ, वो जब जाना चाहे जा सकती है। मेरे बहन और भाई अपनी ज़िंदगी में मगन थे। उन्हें घर के मामलात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब वो जवान हो चुके थे, उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती थी। मैंने मामा को कहा कि वो अपनी औलाद के लिए दुआ किया करें। माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हक़ में ज़रूर कबूल होती है। जल्द ही वो दिन भी आएगा जब वो दोनों भी सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। वक्त बदल रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है, बुरा वक्त आने के बाद इंसान का अच्छा वक्त भी ज़रूर आता है। एक दिन मैं इसी तरह बैठी हुई थी कि अचानक मुझे वही जिन नज़र आया। वो मेरे सामने खड़ा था। उससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने मुझे कहा कि वो मेरे पास एक दरख्वास्त लेकर आया है और ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है। वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी का एक दिन मैं उसके नाम कर दूँ, जिसे वो सारी ज़िंदगी अपने पास एक याद के तौर पर महफूज रखेगा। मेरा दिल किया मैं उसको साफ इनकार कर दूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी आने वाली ज़िंदगी में किसी रुकावट का बायस बने। मेरे लिए यही अक्लमंदी थी कि मैं उसकी बात को खामोशी से मान लूँ। मैंने उसे कहा कि मैं ज़रूर अपनी ज़िंदगी का एक दिन उसके साथ गुजारूंगी, लेकिन इसके बाद उसे वादा करना होगा कि वो मेरे सामने कभी दोबारा नहीं आएगा, ना ही मेरी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई मुदाखलत करेगा। उसने मेरे साथ वादा किया। मुझे लेकर वो पप्पो के घर आया। उसी जामन के दरख्त के तले वो बैठ गया। कहने लगा कि पहली दफ़ा उसने मुझे यहाँ ही देखा था और वो मेरी आवाज़ का दीवाना हो गया। रोज़ मेरी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत सुनने वो आता था। मेरी मौजूदगी उसकी ज़िंदगी में एक खुशगवार झोंके की तरह थी। पूरा दिन वो मेरा इंतज़ार करता था। अगर मैं ना आती तो वो बेचैन रहता था। मैं सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी। आज का दिन उसके नाम था। मैं चाहती थी वो जी भर कर बोले और इन यादों को कैद कर ले। उसकी शदीद ख्वाहिश थी मुझसे कुरान पढ़ना सीखता, जो कि पूरी ना हो सकी। उसका बस नहीं चल रहा था वो सारी दुनिया की नेमतें मेरे आगे ढेर कर दे, मुझे आसमानों की सैर करवाए। मैं भी उसके पास ही बैठ गई। उसकी निगाहें दीवाना वार मेरे चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो मेरे साथ हजर अस्वद को बोसा देना चाहता था, काबे के गिर्द मेरा हाथ पकड़े तवाफ करना चाहता था। ये सब बातें सुनकर मेरे हरक में आंसुओं का गोला फंस गया। मैंने बमुश्किल खुद पर कंट्रोल किया। वो भी अपना आप खो रहा था। उसके अंदर मजीद कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। वो बस आंखों में नमी लिए मुझे देखता रहा और बिन कुछ कहे वहाँ से गायब हो गया। वो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुका था। किसी की मोहब्बत को यूं ठुकराना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मेरे लिए ये भी मुमकिन नहीं था कि मैं किसी इंसान को छोड़कर एक जिन के साथ ज़िंदगी गुजारती।
یہ فطری طور پر ممکن نہیں تھا۔ مجھے فطرت کے اصولوں کے برعکس چلنا پسند نہیں تھا۔ میں ہمیشہ اللہ کے بنائے قوانین کی پابندی کرتی تھی، چاہے دل اس پر راضی ہو یا نہ ہو۔ میرے لیے یہی بات کافی ہوتی تھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ میں نم آنکھیں لیے وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔